आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खुदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो चन खास खबरन पे नजर। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सुंद बयान वादी हिंदन सरहदन पे खामोशी बरकरार दरअंदाजी हज कोशिश नाकाम बनाने बापत फौज चौकस। बरतरफ करनामचन हेल्पर टू सुपरवाइजरन हुंद सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर से एहतजाज निनामतिस फैसले सत मुलाजिम जहनी तनावुक शिकार बरतरफ करनामो तो फैसले वापस निनच इंतजामिया सफी। कॉलेजन मज दरस तदरीस अमल शुरू वैक्सीनेशन काउंटर ते कायम तालिब इल्मन मज खुशी SOPs पे अमल करित क्लास वर्क शुरू। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर सुंद लाल चौक मार्केट अचानक मोइन कोविड प्रोटोकॉलन हज खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाफ कार्रवाई SOPs पे अमल करने तजरन हिदायत। जुमा किस मौके पर दरगाह तो जामिया मस्जिद मज बिला वजह पाबंदी आयत पाबंदी हटावन नमाज जुमा अदा करने चंद से लीडर सईद आखून सज इंतजामिया सफी। तो पेश खबरन हिंस तफसील जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सिंध तरफ छुबा नामुज वादी हिंदन सरहदन पे जंग बंदी हुंद खिलाफ वर्जी हुंद कांत वाक़ पेश ये जन दरअंदाजी हज प्रेत कां कोशिश नाकाम बनाने तमो वोन मजीद जे युस मिलिटेंसी मज शमूलियत कर तमिस खिलाफ ही कार्रवाई कर तो यदि कां मिलिटेंट सरेंडर कर तस मौका फराहम कर। There has been no increase in ceasefire violations. This year there has been none. At least in the Kashmir Valley, there has been zero, and therefore I must tell you that while we are totally prepared for any ceasefire violation, if anything happens, we are all set to respond appropriately. But frankly, there has been no instigation from across the border. Second aspect is about infiltration. There has been some attempts, unlike previous years, which has not been adequately supported by this thing. There have been hardly any successful attempts. There have been, as per my knowledge, only about 2 attempts have succeeded. One was neutralized, as you are well aware, in Bandipur, and we are looking for the second one, which has been successful. There has been an operation which has been ongoing for last about 24 hours in Uri, in which we felt that there is an infiltration attempt which has been made. We are looking for them. Are they on this side, or they, after having made an attempt, they have gone back? That issue has not yet been clarified or verified on the ground. But however, I can assure you that we are quite alert. Our troops on the ground are totally alert, and we will ensure that minimal infiltration takes place whenever the attempt is made. सर, कुछ विदेशी मिलिटेंट सक्रिय हैं घाटी में? नहीं, देखिए, पहली बात यहाँ पे विदेशी मिलिटेंट के नाम पर पाकिस्तानी टेररिस्ट की हैं, वो आपको मेरे ख्याल से IGP साहब और DGP साहब ने कई बार बता दिया है। ये सब उनका महकमा है, और उनके हिसाब से तकरीबन 60 से 70 के आसपास यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है। You are safe, you will be kept safe. There is enough effort. I am not looking at questions on Taliban or foreign terrorists or local terrorists. For us, it has got nothing to do with the quality and quantity. If there is a gentleman who picks up a weapon, he'll be neutralized either way, either by getting killed or by apprehended. And if he comes and offers surrender, we'll take surrender. Which is primarily, I've been reaching out through you all, that we have to ensure that the families come out, reach out to the young ones who have been misled, and they should be allowed to surrender by motivating them and come out to be a responsible citizen of the country. There cannot be a better opportunity as on today to ensure that they can fall back to the civil society. We must expose the people who are within Kashmir, who are ensuring that while their children are studying in good schools, good colleges, good government jobs and other jobs, contractors, businesses, but they ensure that youth which is misled, which is not from such a affluent background, not so well educated, picks up a weapon and dies.
जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ योदवे महकमे सोशल वेलफेयरस मज काम करन वाजने 914 हेल्पर तो सुपरवाइजर बर्खास्त करनुक हुक्मनामा जारी कोर तति आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगरस ब्रोह कन जम्मू कश्मीर हेल्पर्स तो सुपरवाइजर्स एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहर करना आमुत यह दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम हुकूमत निनामतिस फैसलस खिलाफ नारबाजी करान। अत मौके पे वो एहतजाजी मुलाजमों यदवे तम पतमो कहिया वरियो पे मुतलक महकमस मज पन फरज अंजाम दिवान ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ निन आमुत फैसले तिमन सत नाइंसाफी तो मायूस कुन युस तिमन कबूल तमो LG इंतजामिया फैसले वापस निन मांग कर्म। अत मौके पे पुलिस तरफ मुदाखलत कर मुलाजमन हंद सिविल सेक्रेटरीट कुन एहतजाज कर प्रोग्राम नाकाम बनोमुत। हम 918 हेल्पर टू सुपरवाइजर 918 को ही निकले हैं। आजा मारो, कॉलेज को बोला आजा मारो, गवर्नर को बोला आजा मारो, कलेक्टर को बोला आजा मारो, आजा हमको मारो, हमने कफन निकलने का लगाया है, हमको मारो। 30 साल के बाद ये लोग बोलते हैं हम नौकरी से निकल जाओ, हम कहाँ जाए। 918 लड़कियां हम इसमें 918 लड़कियों को निकाल दिया गया। तो हम अब भी गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से भी, फारूक साहब से भी और रुबीना मैम से कि हमारा ये टर्मिनेट ऑर्डर वापस ले लो। तनख्वाह तो हमारी ऐसे वैसे तो तैसी निकली ही, लेकिन हमारा ये टर्मिनेट ऑर्डर वापस ले लो, वरना हम सड़क पे रहेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। हमारी जानों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट रहेगी कि हम अगर मरेंगे तो हमारी जिम्मेदार वही रहेगी। अब से हमारे बच्चे भी हमारे सड़क पे आएंगे, हम सब भूख हड़ताल करेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर सिंध तरफ आवाज लाल चौक बाजरों का अचानक मुआयने करने या दौरान कोविड SOPs हिंस खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाफ कार्रवाई कर जुर्मान अदा करने। अत मौके पे दुकानदारन हदायत दिन जारी रहनुमा खतूतन पे गि अमल यून कर तो मास्क तो दोम SOPs ख्याल यून थावन ताकि कोरोना वायरस के मस्बत मामलन पे रोट लागना। अत मौके पे तिमन SSP श्रीनगर ते मौजूद। तो हमने जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी कंप्लायंस के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है। इसमें कई जगह पर वायोलेशन पाया गया है और वो ऐसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही हैं और जो दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं, उन सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को सील किया गया है। और मैं ये सभी से मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क पहने, और अगर जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 3rd वेव की प्रेडिक्शन है, तो उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें 50% केसेस सिर्फ जिला श्रीनगर से आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का ब्रीच बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं अपील करना चाहता हूँ सभी को कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, वैक्सीन लगवाएं, और जहाँ जहाँ ब्रीच मिलेगा वहाँ इन्फोर्समेंट स्क्वाड एक्शन करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे इलाका जाते हैं जहाँ कोविड प्रोटोकॉल के वायलेशन की वजह से लगातार पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। हम 2-3 दिन वॉच करेंगे, अगर नहीं होगा तो वहाँ उनको कंप्लीट लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरे शहर में 2-3 इलाके पूरे शहर को खतरे में डालें और हर किसी की ज़िंदगी के साथ खेलें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। श्रीनगर शहर में काफ़ी जगह पर हमने खुद और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वायलेशन हो रही है। आज मैं और DC श्रीनगर हम इकट्ठे निकले थे। हमने मार्केट एरियाज़ में कुछ दुकानें भी सील की हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं फॉलो कर रही हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हमें सख्त कदम लेने पड़ेंगे। इंतजामी के हुक्मनामे मुताबिक सफुदाज श्रीनगर कॉलेज मज तलब इलमन बापत दरस तदरीस कमल शुरू या दौरान आज तलब इलम सठा खुश तो पुरजोश नजर यवन। अत मौके पे कॉलेज इंतजामिया तरफ कॉलेज वाले तलब इलमन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो चेक करने, ताहम सिर्फ 50% तलब इलमन सान अमलस ते मौजूद रोजुन यल जन तलब इलमन वालिदैन हिंद इजाजतनामा जरूरी करार दिन आमुत। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एंथुसियास्टिक है हम लोग कि कॉलेज रीओपन हुए हैं, फिर से पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। अभी घर में ऑनलाइन क्लासेस थे, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर दिख रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लोग टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, आमने सामने फेस टू फेस। उधर पे हो जाता था नेटवर्क इशू समथिंग,
हो जाता है। हाँ, सारी फैसिलिटी, सारे SOPs को फॉलो किया जा रहा है कॉलेज में। हमारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पहले चेक की जा रही है, उसके बाद हम लोग को एंटर किया जा रहा है कॉलेज में। तो अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी डर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो उनके लिए एज ए स्टूडेंट आप क्या मैसेज पास करेंगे? नहीं, एज ए स्टूडेंट मैं यही बोलना चाहूँगी, इट्स सेफ, हमें करना चाहिए, वैक्सीन करना चाहिए। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने नहीं किया है वो भी आराम से जो है कॉलेज आ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन इज़ ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन। ऑफलाइन में बच्चों का कॉन्टैक्ट बनता है, बच्चों के साथ जो रिश्ता होता है वो मुस्तहकम होता है। तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज आए, टीचर्स के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बिकॉज एजुकेशन ही कॉलेज का मकसद नहीं होता है। ये भी मकसद होता है कि बच्चों की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कॉलेज कैंपस में आके ही होती है। तो हम बहुत खुश हैं उस ज़मीन में कि बच्चे आज कॉलेज आए, तो बहुत खुशी है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग दिस कोविड SOP, सो अगर आप देखेंगे तो those SOPs are in place। हमने हर जगह सैनिटाइजर इंस्टॉल किए हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करी जा रही हैं गेट पे। तो जो बच्चों अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो अभी उनकी काउंसलिंग हो रही है, वैक्सीनेशन टीम भी यहाँ पे है, उनकी वैक्सीनेशन हो रहा है। यू कैन सी दैट्स ऑल दैट्स हैपनिंग एट द गेट। सो सारी फैकल्टी गेट कॉलेज में है, दे आर ऑन ड्यूटी, वो बच्चों को ज़्यादा गैदरिंग नहीं होने दे रहे हैं। सो क्लासरूम्स में भी सैनिटाइजर्स इन प्लेस। हमने ऐसा रोस्टर बनाया हुआ कि सारे सेमेस्टर्स आज कॉलेज में नहीं आएंगे। आज हमारा आज और कल खाली 5th सेमेस्टर आएगा, फिर अगले 2 दिन हमारा 3rd सेमेस्टर आएगा, फिर अगले 2 दिन हमारा 1st सेमेस्टर आएगा, ताकि कॉलेज में भीड़ न हो, तो कि ट्रांसमिशन जो कोविड ट्रांसमिशन है उसका खतरा टल जाए। यपुर अमर सिंह कॉलेज श्रीनगरस मज दरस तदरीस अमल शुरू गसन सत वैक्सीनेशन काउंटर ते कॉलेजस मज कायम करने आमत ये दौरान कॉलेज इन वाले तिमन तलब इलमन वैक्सीन कर यमो वैक्सीन कोर्मुत। अत मौके पे कॉलेज इंतजामिया तरफ तलब इलमन हिंद हाजिरी बापत अक सर्कुलर जारी कोर्मुत। अगर मैं वैक्सीनेटेड हूँ, एक तो पहले ही मेरे लिए सेफ्टी है और फिर दूसरों के लिए है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि यहाँ पे हमें रखा है, कि ये फैसिलिटी रखी। ओवरऑल इस अमर सिंह कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज अच्छी खासी चहल पहल, खुशी हो रही है कि दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा और क्लासरूम में बैठने का मौका मिलेगा, और खुसूसन ऑफलाइन पढ़ाई होगी, क्योंकि ऑनलाइन तो चल रही है, ऑफलाइन के बाद। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हमें बहुत टाइम के बाद इंटरेक्शन करने को मिलेगा टीचर्स के साथ, क्वेश्चंस फेस टू फेस पूछने का मौका मिलेगा, जो कि ऑनलाइन में बहुत ही कम मिलता था। तो बहुत खुश है कि आफ्टर 2 years 1 year हम आ रहे हैं वापस। हमने एक रोस्टर बना दिया कि 3 सेमेस्टर जो हमारे इस वक्त चल रहे हैं यहाँ पे, 3rd, 5th एंड 1st, मंडे ट्यूसडे हमने रखा है 3rd सेमेस्टर तुलाब के लिए क्लास वर्क इन पर्सन यानी ऑफलाइन। वेडनेसडे थर्सडे हमने रखा है यहाँ पर 5th सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन क्लासेस, यानी उनको यहाँ आना है। और 1st सेमेस्टर के लिए फ्राइडे और सैटरडे। लेकिन अब ये बात जो जहन हर एक के जहन में होगी, आपके जहन में होगी और पेरेंट्स, कि बच्चा सिर्फ 2 ही दिन हफ्ते में पढ़ेगा, वैसी बात नहीं। मैंने अपनी नोटिस में ये क्लियर लिखा है कि जिन 2 दिनों बच्चे यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद की जो उनके 4 दिन रहेंगे, पूरी फैकल्टी को हिदायत दी गई है कि उन 4 दिनों में उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आज जो बच्चे आते हैं, जो 1st सेमेस्टर के, मैंने सर्कुलर में भी लिखा है, जो हमारे आज की 3rd सेमेस्टर के बच्चे या और सेमेस्टर, अगर उन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं किया है, वो आइए, और गेट पर मेरी टीम खड़ा है, वो उनको देखती है, साथ आती है, और हमने ये फैसिलिटी रखी है अपने जो हॉल है बुखारी हॉल में, वहां पर उनके लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम रखा है। नाजरीन को खबरनामा जारी है।